coach of Step Towards Child Success, Season 1, Episode 3, a platform where parents, teachers, and students express their views. I hope everyone is doing good and are equally energetic for today's session. But you know the drill. Before we start, I'm going to introduce you to our company. Mentor Knowledge Management Private Limited has assisted parents and students since 2004 to improve the way they are taking decision and also the way they are implementing them in terms of education and career for a better tomorrow. We welcome everyone. The last two sessions were very interactive. We have some of the participants from our last session as well. Everyone, and the last session, you would agree that it was very interactive. We talked about the dilemma of sending children back to school, and we also talked about the nitty-gritty of online and offline education. But in today's session, we have something different. In today's session, we are going to talk about a very important topic. Should we fix our children's timetable or not? In this discussion, we will be discussing the topic from all perspectives. I would encourage parents, teachers, and students to give their opinion very bluntly and in a straightforward way. So feel free to share your points, whatever they come in your mind. So let's quickly have a recap about the rules so that we can start the discussion further. Kindly do not unmute your profile until asked. It is very important that you are on mute so that there is no disturbance for the current speaker. I'm sure that you would also like when you are speaking, no one disturbs you. So let's follow that. Right? Feel free to ask any queries in the chat box. However, we do encourage questions. You may raise your hand so that the person speaking next to you knows that you also want to speak. For any kind of technical problem you face while the session is going on, you can write it in the chat box below. So, and it is strictly prohibited that you cannot promote any of your business proposal, product, or organization. And if you do so, a strict action will be taken. And you cannot share your email address or number for privacy reason. And this platform is created to generate light and not heat during the discussion. So make sure that you maintain the decorum. And it will be highly appreciated if you can keep your cameras on so we know when you're speaking. And in case of if the decorum of the discussion is compromised, we will be forced to mute the responsible person. Our technical team is keeping a close watch to ensure the decorum. 3 warnings shall be given and then you'll be removed from the meeting. Kindly adhere to the rules, and I hope that we don't have to recap the rules again in between the session. So back to today's topic. Should we fix our child's timetable or not? Making a schedule is important and we all know it. But during the discussion, we need to keep in mind that the age of a child plays a very important role in this discussion. It goes without saying that young kids need adult supervision to make their schedule. But the main question is, when they grow up to be young adolescents, will they understand the responsibility of not only making a schedule for themselves, but also sticking to it? Teaching young children how to balance time can go a big way in defining how she or he is going to manage the pressure at school to start with in later part of life. Now, I would like to introduce you to our moderator, Mr. Tushar Vyas, who has organized and moderated several panel discussion across the nation. Over to you, sir. All right, thank you. So good evening, everyone. I'm sure we are doing very good. Yes, Sunil sir, I would love for you to introduce your students, but let me just speak for a few minutes and then I'll invite you to speak. I loved last time you and Miss Kanani and Suyash. You know, you're really helped us a lot by expressing your opinions, and that was great. So we'll continue the same today, and I hope you all have a lot of points to discuss. And again, I would like to repeat one statement what Twinkle said, that we want to generate light, not heat. So let us just stick to the topic and speak in a very upfront and in a humble way. All right. So today's topic very interesting. When I got to know about this topic, the first question I asked myself, मैंने अपने आप को पहले सवाल पूछा कि जब मैं बच्चा था, and my mother, my father, and of course my grandmother, grandfather, वो लोग टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे उठो. So टाइम टेबल था हमारे वक्त भी. I think no matter what, आप कौन से जनरेशन से हो, टाइम टेबल जो है ना सर, वो हमेशा हमारे साथ ऑलवेज आया है.
You know, I'm sure Ms. Karani will agree, Sunil sir will agree, I agree, Vrushali will agree, Twinkle will agree, all of us will agree कि हम जब से हम होश में आए थे तब से हमारे पीछे टाइम टेबल रहा है हमेशा. टाइम टेबल के साथ चीजें भी रही है कि ये टाइम पे तुम्हें दूध पीना है. सो इट इज, ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे अच्छा लगता था क्या, पर जब मैं पेरेंट बना, एंड ऑफ कोर्स जब मैं बच्चा था तभी जवाब था कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था. स्कूल में टाइम टेबल, घर पे टाइम टेबल, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे पढ़ो, यू नो, एग्जाम के टाइम टेबल्स. सो जब मैं बच्चा था तभी यस आई डिडंट यूज्ड टू लाइक इट ऑनेस्टली. पर जब मैं पेरेंट बना, जब मैं खुद बाप बना, तो मुझे अच्छा लगने लगा. तो ये शायद यू नो एक एक फेज होता है कि आपको कौन सी चीज कभी अच्छी लगे, राइट. क्या हम टाइम टेबल हमारे बच्चों पे इम्पोज कर सकते हैं? मैं इम्पोज नहीं करता. अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं इम्पोज नहीं करता, पर मैं बहुत स्मार्टली एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा है. तो मैं किसी ना किसी चीज से इसको बेचने की कोशिश करता हूँ. सो आई ट्राई टू सेल द टाइम टेबल इज गुड फॉर यू, यू नो. सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. अगेन, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें नहीं प्रूव करना है यहाँ पे. बस हमें ये देखना है कि हम हमारे बच्चों को कैसा फ्यूचर दे, और उसके लिए एक टाइम टेबल होना जरूरी है या नहीं. एज अ पेरेंट मेरा जवाब होगा हाँ. एज अ किड, एज अ चाइल्ड, मेरा जवाब होगा ना. बट इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू मेक्स अ डिफरेंस. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं एक स्टेटमेंट है, आप बोल सकते हो, जो मैं आज आई वुड लाइक टू से इन दिस फोरम. एक हैबिट जो होती है, हैबिट का स्पेलिंग क्या है? HABIT. हैबिट का स्पेलिंग है HABIT. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, राइट. क्योंकि अगर आप हैबिट में से एच निकालोगे तो भी अ बिट स्टिल रिमेन्स. अगर आप ए निकालोगे तो भी बिट स्टिल रिमेन्स. अगर आप बी निकालोगे तो भी इट स्टिल रिमेन्स. सो ये टाइम टेबल जो है, ये हमें हैबिट चेंज करवाएगी. HAB निकालेगा, इट रहेगा. ये एक बहुत ही यू नो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल टॉपिक, but we have to express our own point of view. So ये मेरा point of view है. And yes, I would love to listen from Sunil sir, especially introduction to his students. Thank you very much sir. मैं देख रहा हूँ आप बहुत से students लाए हो. I see even Miss Karani is joined, and if I'm not mistaken, Preeta Karani is Miss Karani's daughter. So I'm really glad and obliged and very happy to see that the kids are joining with the parents. जो ये platform कभी मुझे तो नहीं मिला है, at least आई एम श्योर सुनील सर अग्री करेंगे. सर, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिला है जहां पे हम स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स साथ में मिलकर बात कर सके और हमारे एक्सप्रेस कर सके थे. सो ओवर टू सुनील सर. सुनील सर, प्लीज गो अहेड. यस सर, थैंक यू सो मच सर. ये मैं अपने बच्चे लाया हूँ. ये इशिका सिंह हैं. ये गुड इवनिंग सर. ये 10th में इनके मैथ्स, साइंस और इंग्लिश तीनों में 100 थे. वाओ, दैट्स अमेजिंग. यस. थैंक यू. और ये कपिल गुप्ता है. ये भी हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं. हेलो कपिल, हाउ आर यू? ओके, आई थिंक okay. So I would like to mention कि अगर आप if you don't want to speak, you can chat box जो है आराम से यूज कर सकते हैं. Feel free to communicate there as well. यस. एंड हमारा, आप सुयश को तो जानते ही हैं. और सर, ये जो दूसरा सुयश है, इन्होंने शायद गलती से इनकी आईडी बदल गई. एक का नाम रोहित है, रोहित लैंडी है. वो भी हमारे ऑल इंडिया टॉपर हैं. मतलब इनके भी मैथ, साइंस और SST में 100 थे. That's great. Wow. Hello ma'am. Yes. सो सुनील सर, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपके स्टूडेंट्स जी को आपके जी आज के टॉपिक पे? सो थैंक यू सुयश, रोहित, कपिल, ईशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई रियली आई एम ग्लैड टू सी यू हियर. हमें आप जैसे यंगस्टर्स चाहिए, टॉपर्स चाहिए, होशियार स्टूडेंट्स चाहिए, जो हमें एज अ पेरेंट और टीचर गाइड कर सके कि आप क्या फील करते हो. सो सबसे पहला सवाल, आज का टॉपिक, आप टॉपर बने, टाइम टेबल फॉलो किया था? So let's go one by one. Suyash, Ishika talking. Sorry, Ishika, yes, go ahead. Ishika, please. follow किया था? So more or less करा था, but किसी भी टाइम टेबल को 100%
फॉलो करना इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, एटलीस्ट फॉर मी। तो कई बार डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हाँ कि पूरा नहीं फॉलो कर पाए, बट हाँ मोर और लेस करा था। और ये टाइम टेबल किसने बनाया था? आपने खुद बनाया था अपने लिए, कि आपके पेरेंट्स ने, कि आपके प्रोफेसर्स ने, कि आपके टीचर्स के सर्स ने बनाया था? हमारे माननीय सुनील सर ने बनाया था। ओके, ऑलराइट, सेम क्वेश्चन, सुयश या कपिल? सर टाइम टेबल बना था, बट इन द एंड सर जब ट्यूशंस थी तो उनकी वजह से काफी प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि वो कभी भी बुला लेते थे। स्टार्टिंग में यू कैन फॉलो इट, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट उसके बाद मुश्किल हो जाता है काफी। ओके, तो आपने सुनील सर को बताया कि क्या तकलीफें आ रही है आपको टाइम टेबल फॉलो करने में? हो सकता है टाइम टेबल आपके लिए कुछ यस अलग सर, तरीके मैंने से सर बनाना को हो। कहा था, फिर सर ने कहा कि अभी तो छुट्टियां ही चल रही हैं, अगर तुम सुबह 12 बजे भी उठ रहे हो तो कम से कम रात के 4 बजे तक तो पढ़ो। फिर तो सर मैंने वही किया फिर। यस सर, ये उन्होंने मुझे भी कहा था कि रात को अगर बेटर पढ़ाई होती है तो पूरी रात पढ़ो, दिन में सो जाओ। सो क्योंकि टाइम सर टेबल ये था बच्चे मगर का क्या फ्लेक्सिबल था, हुआ आपके लिए। हाँ, यस सर, इन बच्चों का क्या था, ये ना सुबह इनसे पढ़ाई नहीं होती थी और शाम को इनके ट्यूशन टीचर्स कभी भी ट्यूशन ले लेते थे। तो मैंने कहा था एंड के मोमेंट्स में, एंड के आप सर आप एग्री करेंगे, एंड के मोमेंट्स में एक महीने में बच्चे की सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यस, तो मैंने कहा अभी तुम थोड़े दिन ट्यूशन स्किप भी कर सकते हो, तो तुम उसके टाइम जो ट्यूशन का टाइम है तुम उसमें थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, मतलब ब्रेक, मेंटल ब्रेक भी जरूरी है, ये नहीं बच्चा 12 12 12 घंटे पढ़ता जाए। तो मैंने इनको अपना ही टाइम टेबल दिया और कहा कि तुम अच्छे से पढ़ो, इसको फॉलो करो, जिसमें एडिक्वेट ब्रेक भी था और सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ने का टाइम भी था। तो उन्होंने बस वही फॉलो किया। और बीच में तो एंड में मैंने कहा तुम एंड में टाइम टेबल फॉलो करो ना करो पर सेल्फ स्टडी जरूर करो, सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज जरूर करो। सो सर आपने टाइम टेबल बनाया मगर फ्लेक्सिबल किया आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हो। जी 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 बिल्कुल सर। सॉरी ट्विंकल, यू वर सेइंग समथिंग। आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन फॉर सुनील सर। क्या आप बच्चों को जानते हैं? आप इशिका है यहाँ पर और सुयश भी है, दोनों अपने अपने तरीकों में काफी अलग इंडिविजुअल्स, अलग पर्सनालिटीज होंगी। सो आपने जब उनको सजेशन दिया उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, मतलब टाइम टेबल कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो ये एज अ टीचर क्या क्राइटेरियाज आप फॉलो करते हैं सो दैट यू कैन मेक श्योर कि आप जो उनको टाइम टेबल सजेस्ट कर रहे हैं इट्स फ्लेक्सिबल फॉर देम एंड इट ऑल्सो सूट्स देम something Yes. कि वो अडेप्ट कर पाएंगे? So what are the few criteria that a teacher should always have in mind? ये सबसे पहले तो इनका इनका मेरे साथ स्टूडेंट टीचर का नहीं, एक पेरेंट का रिलेशन है इनके साथ। तो मैं इनको सालों से, मैं अभी से नहीं, ये अभी तो 11th में आई हैं, अभी शिका और सुयश अभी 10th में हैं। तो इनका मेरा पेरेंट का रिलेशन है। मैं इनको 1 साल से नहीं 3 साल से सबको पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे पता है इनकी क्या क्या चीजें हैं, इनको कैसे कैसे इनकी कहाँ कहाँ लैग करते हैं ये चीजें, कहाँ कहाँ ये अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे बीच में सुयश हिंदी में बिल्कुल अच्छा नहीं था और इसको एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक है। तो मैंने इसका एसएसटी का टाइम टेबल में थोड़ा ज्यादा कर दिया ताकि इसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। ये मैथ्स में मतलब ये अच्छे से ब्रेन भी लगा लेता था, पर ये एसएसटी में गोल था। पर इसलिए एसएसटी में मैंने इसको 1 आवर की जगह 2 आवर करने को कहा और इसने अच्छे से फॉलो भी किया। तो मैंने कहा कि तुम एसएसटी को रटो मत, तुम समझो, हर पैराग्राफ को समझो। तो इनको ये इसमें एक ड्रॉबैक हुआ था, इनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस था इनका 10th में। तो इसलिए मैंने इनको एसएसटी में ज्यादा टाइम देने को कहा और इनकी वीकनेस जहाँ थी उनको उसको ज्यादा टाइम दिया, और जो जो इनकी चीजें अच्छे से रेडी थी, मतलब तुम उसको कम भी टाइम दोगे तो तुम आगे उसको अच्छे से कर पाओगे। इसलिए और रोहित सुनील सर एक लैंडी, चीज, और तो एक रोहित चीज मैं लैंडी भी आपसे सीखा हमारे आज। ऑल इंडिया टॉपर है। ओके, सो रोहित आप कुछ बोलना चाहोगे? रोहित, रोहित टॉपर प्लीज। साहब। यस सर। सर एक्चुअली सुनील सर ने मेरे लिए भी टाइम टेबल बनाया था, बट बिकॉज उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो बाद में सर ने कहा था इसको अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली यूज कर लो, अगर आपने नहीं फॉलो करना तो भी ठीक है, बट अपने ओवरऑल स्टडीज पे कंसंट्रेट। और एक ये चीज सर मुझे यहाँ सीखने कपिल मिली। गुप्ता भी सर कुछ बोलना चाहते हैं, इनका मैसेज आ रहा है। अब कपिल आप बोल सकते हैं बेटा, बोलिए।
कपिल, Okay, I think Preeta wants to say something. Preeta? Hello, everyone. Hello, Preeta. How are you doing? Yeah, I'm good. I would like Yes. to say that when you talk about timetable, it doesn't mean that in the day at what time you're doing what. It means how much time you will give to this thing, right? So if you are making a timetable, doesn't mean that you will say that from 6 to 10 I'm gonna study. It means if, let's say, if 6 to 7 we got some other work to do, then we will have to give the priority to that thing. So Right. our timetable is ruined here. That's why I would like to say that, of course, flexibility is important. Like if you have wasted some other time some other where, so you will have to arrange that in other way, Right. right? Like if you want to give 2 hours to science, and if you are giving 1 hour, so next day you have to give 3 hours to science. That means Right. timetable. Yeah, so that's my So point. so good. I think what I got to learn from Sunil sir is that आपने सिर्फ टाइम टेबल ही नहीं बनाया, आप फ्लेक्सिबिलिटी भी उनकी डिसीजन पे रखा, बिकॉज आपको अपने बच्चों को ही बच्चों का सब पता है। प्लस आपने उनको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपने उनको अपना डिसीजन मेकिंग पावर दिया कि भाई तुमको ये करना है, ये इस हिसाब से करो। सो ये तीन चीज बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों पे एक टाइम टेबल ना थोपे, हम बना के दे, बट अल्टीमेटली उनको डिसीजन लेने दे कि उनको कितना करना है। लाइक प्रीता राइटली सेड, राइट, कि कितने बजे करना है वो जरूरी नहीं है, कितना करना है वो जरूरी है। अगेन मैं थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, पर मुझे वापस यही बच्चों से सवाल है। यहाँ पे हम स्टडीज के टाइम टेबल की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी सुनील सर आप ये अभी थोड़ा पेरेंट वे पे जाएंगे, हम स्टडीज पे बात कर रहे हैं, राइट। पर कभी कभार कैसा होता है, हम हमारे बच्चों के उठने का टाइम टेबल, नहाने धोने का टाइम टेबल, वी ऑल्सो मेक टाइम टेबल दैट यू शुड ईट लंच एट दिस टाइम, डिनर एट दिस टाइम, रात को दूध पियो, ब्रश करो, ये भी टाइम टेबल ही है, राइट। राइट। सो इस पे हमारे बच्चों का क्या कहना है? आई एम श्योर ये टाइम टेबल बनता नहीं है, पर ये टाइम टेबल हमारे में इंकलकेट हो गया बचपन से। तो आपको पता है 7 बजे पापा चिल्लाएंगे इशिका खाने आओ। सो दिस इज सो इसका टाइम टेबल बनता नहीं है। बट हाउ डू यू फील? सो कपिल, रोहित, प्रीता, इशिका, सुयश, I can see some Mr. Bhuvan is also online. यस सर, ये भी हमारा बच्चा है, भुवन डिल्लोन। भुवन बेटा बोलो। Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I guess. बेटा गेस के बाद म्यूट हो गया तू। Hello, am I audible, sir? Hello. Yes, you're audible, Bhuvan. You can go ahead. हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मेरे को अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता है टाइम टेबल का जो सही मीनिंग है वो है जब मन करे पढ़ने का। मतलब एज इन जब आपका मन नहीं है तो फॉर एग्जांपल किताब खोल के बैठना इज नॉट जस्ट अ सॉल्यूशन, यू नो। राइट। पढ़ाई होनी चाहिए फ्रूटफुल, भले ही 2 घंटे की हो, 1 घंटे की हो। सो ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज करी थी, ये भी मेरे को सुनील सर ने ही बताई थी। तो मैंने सर को, मतलब सब लोग बोल रहे थे कि सुनील सर ने टाइम टेबल बहुत बढ़िया बनाया, तो मैं भी गया था सर के पास पूछने। तब सर ने मेरे को समझाया था कि पढ़ने का टाइम सिर्फ वो होता है जब तुम्हारा मन करे पढ़ने का, एक कोई पर्टिकुलर टाइम। सर ये मैंने इसकी परफॉर्मेंस देख के बनाया था। ये शुरू सर ये पढ़ता ही नहीं था सर, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था सर, ये पढ़ता ही नहीं था। फिर सर मैंने कहा जब तेरा मन करे, जब तेरा मन सर बीच में तो सर जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सर इसमें टैलेंट बहुत था सर, ये 2 मिनट में चीजें याद कर सर, होता है ना कुछ कुछ जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता पर वो चीजें देखते हैं और लॉजिकली अपना खुद का आंसर लिखते हैं। सर ये वो बच्चा था सर, पढ़ता ही नहीं था सर ये बिल्कुल। तो सर मैंने इसको शुरू में थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, इसको स्ट्रिक्टनेस की, और इसको साइंस और मैथ्स मजे की तरह पढ़ाया, जैसे मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाया। तो वैसे और जैसे साइंस में, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जैसे कि आप मजे से पढ़ाने वाली बात कर रहे थे, तो जब हमारा आय वाला चैप्टर हो रहा था तो
विबग्योर एंड ऑल के लिए सर ने एक्चुअली हमारे को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए थे, जोक्स क्रैक करते थे बीच बीच में, तो काफी अच्छा रहता था सर। और फिर ये सुनील सर जो की भुवन है वो, उसको फिर जब सर इसको थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, जब आप रियल लाइफ में आप अपने सामने चीज बुक किताबें में आप देखते हो कि विबग्योर बनता है 7 कलर्स का, जब तक बच्चा सामने नहीं देखेगा उसको इंटरेस्ट कैसे आएगा? आप खुद ही बताइए। सर इसने फिर देखा, इसने साइंस में इतना इसको इंटरेस्ट जागने लगा। मैंने कहा सर अगर अगर तुझे अच्छा लग रहा है साइंस तो तू साइंस को ज्यादा ही पढ़ ले। सो और सर इसके 10th में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, भुवन ढिल्लों के। सर आपके तो सब टॉपर ही है सर। मुझे पहले बस पता सर। होता मेरे बच्चे को भेज जाता आपके पास। बट आई एम सो हैप्पी टू सी दैट we have got some brilliant students. And आज they're most wanting of to them are learn, topper. and they are here for expressing themselves. So that's a really great thing. No, thank you so much for that. But again, my question is, apart of study timetable, खाने का, नहाने का, पीने का, what about that? जो Yeah, हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी I want कि इसका आंसर पहले हमारे स्टूडेंट्स भी दे, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स है, व्हाट डू यू थिंक, आपका व्हाट आर योर व्यूज कि क्या पेरेंट्स को, वुड यू वांट योर पेरेंट्स टू सेट अ टाइम टेबल फॉर यू? अगर नहीं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड हैव इन माइंड? सॉरी टू डिस्टर्ब तो मैम। मैम ये कपिल का माइक अब चल रहा है, कपिल बेटा बोलो। कपिल। Oh, हाँ हाँ बोलो बेटा बोलो। good afternoon, everyone. Good evening, everyone. इवनिंग। Sorry. Okay, so मुझे जो लगता है कि हमें जो अपना टाइम टेबल है, लाइक जैसे भुवन ने पॉइंट आउट किया था कि हमें अपने लाइक एक चीज सेट करनी चाहिए, बट जब मन करे तब पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फ्रूट नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। राइट। मैंने भी मैम कभी कभार फॉर एग्जांपल होता है कि आपका सुबह पढ़ने का मन कर रहा है, बट उस टाइम अगर आपका टाइम टेबल फिक्स है कि इस टाइम नहाना है, खाना खाना है, तो फिर वो आपका टाइम वेस्ट चला गया। तो इस टाइम पे आप एक स्वैप कर सकते हो, जैसे कि बाद में अगर नहा लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आई हैव वन क्वेश्चन अगेन, मतलब इसी पॉइंट से, हाउ वुड यू मेक श्योर कि आप वो चीज कहीं बैकलॉग में ना चली जाए, आप भूल ना जाए उस चीज को करना? बट मैम आई फील कि लाइक पढ़ाई इज एनी टाइम मोर इम्पोर्टेंट देन डेली लाइफ वर्क्स भी हमारे को करने पड़ते हैं, बट वो हम लैग करके थोड़ा कर सकते हैं, बट पढ़ाई इज द प्राइमरी फोकस। प्रीता आप भी कुछ बोलना चाहते थे, प्लीज गो अहेड। या सर ने जैसे बात की कि स्टडीज के अलावा और कोई टाइम टेबल कैसे रखेंगे, मतलब तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे हाथ में नहीं है बिल्कुल, क्योंकि खाना बनाना वो घर के मतलब लाइक मम्मा जी करते हैं यूजुअली, सो वी कैन नॉट लाइक ऐसे थोप नहीं सकते कि नहीं आप 12 से 1 बजे ही मुझे खाना दे दो। या सो दैट इज नॉट गुड थिंग। I am not telling you to thopify your timetable on your mom. I am telling you your mom has thopified her timetable कि 1 बजे खा लेना दोपहर को, I am talking about that. या ये हो सकता है, लाइक ये टाइम टेबल तो पेरेंट्स के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर स्टडीज तो दैट इज आवर वर्क, एक ही काम है पढ़ना, तो वो तो फिर वही है तो वही करो, फिर खाना वाना एंड दैट इज ऑल सेकेंडरी देन। Preeta has accepted the fact that there are certain things that the parents are going to do and have accepted it. Yeah, हाँ, obviously मतलब वो part that of is life हो गया। struggle. Yeah. Okay, Bhuvan Ma'am- wants to say something. हाँ जी मैम। मैम मेरे को बस एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि मैम जैसे बैकलॉग अभी आपने बोला, तो अगर एज अ पेरेंट बैकलॉग अगर पढ़ाई का ना हो, फॉर एग्जांपल कुछ खेलने का ही हो, फ्री टाइम हो, तो क्या आप बोलेंगे अपने बच्चे को कि अब तुम्हारा बैकलॉग जो था वो तुम अब यूज कर लो पढ़ाई के टाइम पे? नहीं, ओके सो अगर पूरे दिन में आपका सुबह का टाइम स्लॉट था कि आपको उस टाइम पे पढ़ना था और आपने मिस हो गया, यू थॉट कि मैं पूरे दिन में कभी और कर लूंगा, अगर आपको वो चीज याद नहीं है, फिर पेरेंट इज टेलिंग यू कि ये कब करोगे, सो यू शुड हैव अ रीजनेबल आंसर कि मैं ये कब करूंगा। यू शुड हैव दैट इन माइंड। आप नहीं भूल जाने चाहिए, वरना दैट थिंग इज गोइंग टू कीप ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। नो मैम अगर वो जो हमारा जो पहले टाइम था वो हमने एक्सचेंज करके अपने स्पोर्ट्स टाइम से पहले पढ़ लिए हम, तो जो हमारा खेलने का टाइम है, क्या आप वो याद दिलाओगे कि ये तुम्हारा खेलने का टाइम था और अब तुम जाकर खेलो? मैं पर्सनली याद जरूर दिलाऊंगी।
I think यहाँ it's a पे I would brilliant like तो point. यहाँ पर एक बायस हो जाता है, पेरेंट्स पढ़ाई के लिए तो कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, बट अदर टाइम के लिए तो वो नहीं हाँ, ये कहते, बात सही है। that's bias. ये सही कह रही है। No, no, अब तो okay. हमें कम्युनिकेट करना सर पड़ेगा इसलिए ना। मैंने इनके टाइम टेबल में खेलने का टाइम भी ज्यादा किया था ताकि मेरे ऊपर ऐसी उंगलियां ना Yes आए। sir, thank you sir. So I think it's a very valid point. Yeah, very, very. But Ishika, to answer your question, parents will always be biased. And trust me, when you grow, when you become a parent, you'll realize this and you will start doing the same thing because you have also learned from your parents. For me, खेलना is equally important as studies because last time I think सुनील सर ने बोला था कि हम अगर स्कूल जाते हैं तो आई थिंक कानानी मैडम ने बोला था कि अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बढ़ती है और ये सिनेरियो में I actually encourage my kids to go down to the society and play, of course with mask and with whatever best healthcare we can take care of at this situation. क्योंकि पढ़ना पूरा दिन I understand के sometimes you become color blind. भले कलर एक ही है, वही ब्लैक कलर के अक्षर है, पर साइकोलॉजिकली आप कभी कभी कलर ब्लाइंड बन जाते हो और वो चीजें हमें इसलिए स्कूल का जो टाइम टेबल होता है कि हर सब्जेक्ट के बाद 5 मिनट का ब्रेक, वी हैव 2 or 3 शॉर्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, आफ्टर दैट स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये एक चीज जो होती है ये पेंडेमिक सिचुएशन में कहीं ना कहीं घूम गई है कि बच्चे इतने घर पे बैठते हैं तो पेरेंट्स वही बोलेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये भी एक एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ मैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, my son is in 10th standard and my daughter is in 3rd standard. बट ये फिलहाल 4-5 महीने हमने बहुत ही, तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे ये सिचुएशन पिछला 1 साल हम सबके लिए माइंडसेट चेंज हुआ है, हम सबके लिए, हम सब अपने अपने जो पोजीशन पे है पर्सनल लाइफ में वो पोजीशन पे हमने सोचना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बायसनेस नहीं है इशिका, अगेन टू करेक्ट माई सेल्फ टू करेक्ट यू, ये बायसनेस नहीं है, ये केयरिंग है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बायसनेस समझते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे बायसनेस समझते हैं। यस गो अहेड इशिका। सर मैं बायसनेस एज इन डायरेक्टली नहीं कहूंगी, बट खेलना भी तो इम्पोर्टेंट है। Okay, Absolutely. I think Tushar sir gave the perspective कि एक parent क्या सोचता है. I would like to put in a perspective what a student might feel. See, तुषार सर ने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि हमें बच्चों को मनवाना पड़ता है, we have to sell the timetable to them. I think हमें भी, we kids also need to be smart that we have to sell कि हमें भी खेलना, why is it important? We are smart, we do that. I'm pretty sure कि हम ऐसा करते ही होंगे. It's just that we have to do it थोड़ा constructive manner में, from psychological point of view as well. वो हमें समझाते हैं that why is it important to follow a timetable, schedule क्यों important है. We have to tell them खेलना क्यों important है, and in a way that they understand, right? Yes, Preeta, you want to say something? Yeah, so first point which I would like to put here is कि अगर तुमने एक दिन का खेलना skip किया है and then you have studied in that time, then next day you can give your time to खेलना, right? Like तुम्हारा पढ़ाई का कोटा जो होता है वो कंप्लीट हो गया है, फिर तुम अपना खेलने का कोटा कंप्लीट कर सकते हो। वो कौन डिसाइड करेगा कि कोटा कंप्लीट हुआ है? आई थिंक मिसेस कानानी यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन फॉर प्रीता। Yes. मिसेस कानानी प्लीज कम इन। Yes, good evening all. Good evening. Actually, really. गुड इवनिंग करानी मैम, हम तो पहचान ही नहीं पाए मैम आप हो भी। Actually, I feel that बच्चा जब से बॉर्न होता है, when the child is born, हम उसके सारे टाइम टेबल उसी टाइम ही डिसाइड कर लेते हैं। मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमें बच्चे से क्या करवाना है, क्या करना है, अपने आप तो बच्चा करेगा नहीं, पर एवरीथिंग वी फिक्स द टाइम। मसाज का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, उनको दूध पिलाने का टाइम होता है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। कब नहलाना है, नाउ इट इज नहलाना, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, मॉर्निंग टाइम नहीं नहलाते, आफ्टरनून टाइम्स वी सिलेक्ट एज ड्यू टू द चाइल्ड डोंट गेट मीन्स यू कैन से बच्चा सेंसिटिव होता है तो उसको इतनी असर ना करे। सेम वे point is here, when you are teenager, when you are young,
यहाँ पे भी हमें बच्चों का टाइम फिक्स करना ही पड़ता है. मे बी that time also children were unaware, हम ही उनका टाइम टेबल बना रहे थे. एंड अभी भी बच्चे अवेयर हैं एंड हमें ही बनाना है उनका टाइम टेबल, बिकॉज इट इज कि अभी मैं हूँ तो मैं अपना टाइम टेबल फिक्स करूंगी, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे होगा चलो मोबाइल लेके बैठ गई हूँ, then I'm just sitting, time is gone, and suddenly I realize that my cooking is left and I run out. This point happens many times with us also and with the children also. So we have to continuously be alert with them whether they are following their timetable or not. And maybe we should fix the timetable. First you have to think about the major things, like whatever subjects are there, science, socials, maths, English, Hindi, whatever subjects, just decide out. And I feel how that in a day, I don't think that 2 3 subjects should be followed. One should be practical and one should be theory. My counting is like that. I went with Preeta like that, and with my many students I went like that. I just made the timetable separately for each and every child according to their requirements, according to their morning timetables, evening timetables, when they are getting up, when they are having lunch, when they are having dinner, because we cannot change everyone's time, that you change your time. Maybe the father is coming at 2 o'clock from the office, or business is there, whatever, 3 o'clock they are coming, and child maybe they have the habit and they are sitting with their parents, all families sitting together for lunch and dinners, like we have the same thing. So I fix Preeta's time accordingly. The breakfast time is there, the bath time is given, then whatever schedule, if online classes are going on, her schedule is tight with that, I have to carry out with that also. Then what regarding lunch and dinner also, regarding morning walk and running, which is very very important. Whenever you are running fast or you're jumping or skipping, your, I think, hippocampus will be empty by that, and you can fill it whatever you read that time, whatever you learn that time after immediate running and exercise. Then what happens, you will immediately remember whatever you have read for 40 to 60 minutes, nearest 1 hour, you can remember very easily that. So I feel that everything should be followed. Maybe the child is interested in drawing, give them 1 hour or half hour for the drawing also. And I have kept Preeta totally out of social media. I didn't allow her the TV. Only during, they say that lunch ke time, yeah, lunch time we don't have TV, but dinner time I allow her only half hour. We together watch TV. Even we all, means we don't watch TV in the full day. Everyone's schedule is tight, and even if we have time, we don't watch because Preeta gets disturbed. If I don't follow, if I continuously sit and watch TV, then obviously even she will be flexible and she will do that only. She will say, "आप करे तो मैं क्यों नहीं करूं?" है ना? So I don't allow her. I just, even we follow with her the timetable. We don't, only during dinner time. ऐसे कहते हैं कि खाने के टाइम हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे हमारे विचार होते हैं. बट यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए I just tell, means we just watch any one serial, not many things. Sometimes news is there for 10-15 minutes and one serial we watch out, and then rest is with the timetable. Sleeping time is decided, and she's a night learner. Morning she doesn't get up easily, but night learner, so she will sit till 3 o'clock and learn, and then I have to fix her time accordingly. And many of them, my students are there, they just morning time they give for learning, so I have to fix accordingly. Their lunch time is different, so I fix their time accordingly. But point is, first you should decide the major things within a week, within a month, you can say within a month, how many subjects and how many chapters you have to complete in each subject. After that, give a week. In this week, what subjects you will do. After that, you make a minor, very minute things, minor timetable, that is in a day the chapter should be completed in 1 day, maybe 2 days. English, Hindi you can complete in 1 day, but for science you need 2 or 3 days. For short answers, medium, 3 markers, then 5 markers you need. So I feel here. Yes. मैम इवन आई वांटेड टू ऐड समथिंग, लाइक आपने काफी सारा बोल रहे थे तो मेरे को बीच में कुछ पॉइंट्स बोलने थे. श्योर. मैम आई अग्री कि यस पेरेंट्स को थोड़ा सर्विलेंस करना चाहिए, बट इतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि
फिर हम कैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे, हम कैसे कॉलेज लाइफ में अपने टाइम टेबल्स खुद डिजाइन करेंगे। तो अगर वो हमारे को टीनेज से ही अपना टाइम टेबल खुद मैनेज करने दे और बस थोड़ा encourage करे एंड सर्विलेंस रखे, तो वो बेटर रहेगा rather than parents designing everything. Yes, I am coming to that point also. I would like I am coming to that point also. Now here comes the point what when the child is small, unaware, that time we can fix any time for them. Any timetable we can fix, which will be obviously for the betterment of the child. And after that, when you are teenager, we will fix also, that time also we'll fix the same time, means in a way that which is betterment for you. But now your point comes what, main thing, I will fix any time for my daughter or my students. Okay, they may follow half, they may follow 3/4, they may not follow also. But always, what you should do now, this is a point for teenager. You just explain them how the timetable should be, what the point should be counted. Ma'am, you can't explain them ना, a child would know better कि हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि I know मेरे पेरेंट्स ने मेरे बोर्ड के टाइम पे कुछ भी मेरे को सर्विलेंस नहीं करा, and yet I could score so well thanks to Sunil I would sir. like to add But here. all children are not same, beta. All children are not same. Maybe you are aware for your good. For your good, for your betterment, you can think very well. Every child cannot think. Many children are dull in studies, so we have to fix the timetable for them. And many times Excuse what me. happens, we can allow them, just a minute, Preeta, we can allow them that you please fix your timetable. We can have a check over it. I allow Preeta to fix the timetable. I saw many, every time I made many timetables for Preeta, but she was not fixed, compared, means she was not able to complete it. She was not able to follow it completely. So now after that I gave a chance to Preeta. The way I fix my timetable for you, my timetable I fix in my way for you, you also fix for yourself some timetable. So yes, Preeta is my daughter. And after that she gave for herself the timetable, she made the timetable, and this was a better thing she was able to do. But the child should be aware. When you say that parents cannot fix our timetable, then if you are aware that what you should do, then it is parents are not required to do anything. But if you are not in a good way, you are distracting yourself in many I would like to speak here. Yeah. Ishika, I want to speak about your point. Yeah, so you said that parents cannot explain them, right? Sorry, could you repeat that? मेरा थोड़ा audio disconnect हो गया. Yeah, you said that parents cannot explain you what kind of timetable you should follow, right? Not fully. शुरू में They should parents को not. ही I guide mean, I'm करना. saying that ideally they should not, because अगर वो हम में ये instill नहीं करेंगे कि we should be aware of our studies. I would like to. Yeah, you are right, like but your sir helped you ना in that point. So थोड़ा instinct देना जरूरी है. तुम्हारे केस में parents ने नहीं, शायद तुम्हारे sir ने दिया होगा. लेकिन मेरे केस में my mom gave me. So that just depends on the instinct कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि time table क्या होता है, कैसे करना है, and then you can go on your way. शुरू में देखिए, adolescence इन देखो, ये अभी सारे बच्चे टीनेज में आ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और आप मानेंगे कि इनकी हार्मोनल ग्रोथ चेंज होती रहती है और ये थोड़े चिड़चिड़े भी होते रहते हैं. तो ये जैसे छोटे छोटे बातों पे भी लड़ते हैं, तो इनको इरिटेट ये ऐसी स्टेज में, आप भी इस स्टेज से गुजरे हैं कि इस स्टेज में इरिटेशन बहुत होती है. कोई आपको टोक भी दे तो आपको लगता है हम ही पन्ने खाए हैं, हमसे आगे तो कोई है ही नहीं. तो ये टीन एज में ऐसा होता है. तो इसलिए मैंने शुरू में इनको टाइम टेबल बना के दिया कि तुम्हारा ये टाइम टेबल है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लग रहा तो सेल्फ स्टडी करो, पर मुझे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन चाहिए, तुम्हारा हैप्पीनेस चाहिए, और अगर तुम अपने हिसाब से पढ़ोगे, तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर आएंगे, ठीक है. और अगर तुम मेरा टाइम टेबल फॉलो करोगे और उसमें अपना ही सेल्फ स्टडी जोड़ोगे तो भी तुम्हारे नंबर आएंगे. मैंने बस इनको शुरू में बोल दिया. अब आगे इनकी मर्जी है, इनको फॉलो करना है या नहीं, पर मेरी बैक हमेशा थी इनके साथ कि इनको करना चाहिए फॉलो, और इन्होंने बहुत अच्छे से किया भी. पर ऐसा नहीं मैंने इन पे बहुत जोर डाला कि करोगी. अगर बच्चा 1-2 दिन ना भी पढ़े या वो थक चुका है, वो अपने आप वो 1 दिन बाद या आधे दिन बाद खुद किताब उठाएगा. ऐसा कोई बच्चा भी नहीं है कि जो पूरा दिन ही ना पढ़े. So leverage देना भी जरूरी है. Sunil sir, is what you are saying. I would like to add here, ma'am.
one thing which I understood here is that timetable is all about making student learn about time management, right? And time management means, prioritizing your things, making a to-do list, and understanding what is important, how much time you should give to rest, how much time for exercise, how much time to academics. Definitely, academics plays a major role, and we don't want that, it should cost anything to them. I mean, definitely, if you miss your, time when you have to study science because you have a test tomorrow morning, then it's necessary that you do that part that day itself, and that's Whether time you have management. mood or no, you have to follow that time. When Yes, a test is, because sorry to this disturb you, will ma'am. cost them. Yes. This will cost them. This Yes. will cost them definitely if they don't do Ma'am, at that moment. ma'am, So sorry yeah, to it should be flexible also. But one thing that students should learn, because this is like when right now when we are adults, we can understand how much important it is to manage your time, because time is money. Time is money, and I think everyone will agree. You either spend money or you spend time. It's equal, and that's why learn Not it from only, the ma'am. Right. very beginning will help. Tushar, so you wanted to say Okay, something? sorry everyone. I think Bhuvan is waiting to speak since a long time. And Rohit, yes, I want you also to speak. Bhuvan, speak please. सर मेरे को सिर्फ ये बोलना था कि मेरे ख्याल से टाइम टेबल एक ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो मे बी अच्छे से समझता हो व्हाट आर द नीड्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, समझता हो कि क्या डिफिकल्टीज आती हैं उसे फॉलो करने में एक टाइम टेबल. So who could be better than your parent or teacher? Who could be better than your parent or teacher? Bhuvan, बहुत अच्छा पॉइंट है. सर आई गेस मे बी एल्डर ब्रदर, क्योंकि वो उसी टाइम फेज से निकला होता है, ठीक है. कौन? एल्डर ब्रदर. ओके. और समवन जो ज्यादा बड़ा भी ना हो और तुम्हारे ज्यादा इक्वल भी ना हो, मतलब मे बी 3 to 4 years older, ठीक है, जो थोड़ा मैच्योरली सोच सकता हो. What if you don't have elder brother? देखो आपके फ्रेंड्स होंगे सीनियर. ऐसा नहीं होता कि कोई होता ही नहीं है, ठीक है, कोई तो बड़ा होता ही है 2-3 साल आपसे, नहीं होता तो. नहीं, in my family I am the eldest. Yeah, No, but do you have a cousin? You may have a cousin or someone, of course cousins Yeah, but does not then again influence the a lot. point, someone with who cousins knows you should make your timetable. I think we should let Bhuvan speak because he's talking about his experience. His life mein hai, I'm pretty sure at least 50% of us can relate to it. So I think we should let him speak. Yes, Bhuvan, go ahead. Yeah, so मतलब कोई भी आपसे थोड़ा एल्डर हो, मे बी 3 to 4 years old, जो कि समझ सकता हो, जो उसी जनरेशन गैप के बीच में, मतलब ज्यादा जनरेशन गैप भी ना उसके बीच में, जो समझ सकता हो व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो कि उस टाइम पे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पढ़ने के बीच में, जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. सो बेसिकली दैट वाज माय पॉइंट. Yeah, so can I speak here? Just a second. मैडम लैंडी को बोलना है, रोहित लैंडी को बोलना है. That is something which must have worked for Bhuvan. So उसको वो तरीका मिल गया, so that's fine. Yes, Preeta, now you can tell. Yeah, I would like to say that as he said that seniors or elder cousins can help, but as we know, relatives are the biggest criticism, right? So we know that cousins won't wish that we do better than them or we do in a right path, right? So they will obviously say that no. I think the ये तो well-wisher, your ये गलत point है biggest बिल्कुल. well-wishers Well-wishers are are your always teachers and parents your parents. and teachers, right? ये बिल्कुल गलत point है. I'm sorry. Okay, one at a time. Sunil sir, बोलिए, Sunil sir. Yes, ये मेरे हिसाब से तो गलत पॉइंट है. अगर आपका कोई सगा भाई बहन है तो वो आपको क्या ये चाहेगा कि तुम 10th में टॉप ना करो, तुम फेल हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं करवाऊंगा. अगर मेरा भाई 11th में होगा और मैं 10th में, तो वो क्या मेरे मैथ्स के सम की मदद नहीं करेगा? मुझे अपनी एक्सपीरियंस नहीं बताएगा कि उसने कैसे 10th में पढ़ाई करी और मुझे कैसे पढ़नी है? बताएगा सर ऑब्वियसली, लेकिन वो टाइम टेबल नहीं हमें बता के देगा कि तुम इस टाइम पे. उसे क्या हमारे टाइम टेबल से लेना देना? वो हमारा भाई है, हमें नहीं बताएगा. Sorry to Yes, guys, one at a time. Suyash, speak. Suyash, रोहित लैंडी ने ऐसे बोला सर. ये वो कह रहे हैं कि अब वो देगा नहीं, अगर आप उसे बोलोगे नहीं तो वो ऑब्वियसली नहीं देगा. थोड़ा जोर से बोलो सुयश, सुनाई नहीं दे रहा है. टाइम टेबल अगर आप जब तक उससे मांगोगे नहीं तब तक वो क्यों देगा? आपको बोलना पड़ेगा ना. Yeah, what is the guarantee that he will give you the right timetable? Obviously, you can trust your parents and teachers here. Preeta, then मैम the वो question भाई है would हमारा. be,
प्रीता दैट प्रीता गारंटी तो ये किसी भी सब चीज ये की नहीं सब इन दिस वर्ल्ड। हम 5th या 4th में नहीं है, ठीक है, जो हमारा भाई हमें बोलेगा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दे रहा, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल हो जाता है इतने में 11th में कि वो हेल्प करे, हाँ मेरा भाई है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, एज अ एल्डर ब्रदर मैं भी, अगर मेरा कोई भाई है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा कि Not हाँ to impress the उसमें parents, the नहीं है children also या having competition between the या I mean, sisters and I'm not brothers. sure. There are I have never. competition. प्रीता Just आप to क्या कर add रहे to हैं that, आजकल? आप कि कौन सी क्लास में या कहाँ हैं आप आजकल? I'm a dropper. NEET. ओके ओके। मैम मैं आपकी पॉइंट पे बस एक बात डालना, लाइक एक व्यू पॉइंट डालना चाहती हूँ कि हर बार ये जरूरी नहीं होता। लाइक मेरे ब्रदर ने मेरे को काफी गाइड करा है, एंड हर फैमिली में वो सेम कंडीशंस हो, ये जरूरी नहीं है कि सिबलिंग्स में No, that is राइवलरी right. हो। एंड Every time, all fingers are not same. You are right on your way. Many time it happens because now here Preeta has seen such things many times. Maybe she's speaking that, True, and maybe true. you are speaking your experience. So their views are different for different children. Every time it is not the same case that children will not guide each other. Maybe friend will guide very nicely. It is not that only cousins and relatives and brothers and sisters, real brothers, siblings are not the point. I Even would friends like, can guide you. yeah, I think well-wishers are the right word. And well-wishers are someone which their children, they can find them better. And I think Preeta knows that her mother is the right well-wisher, and students all here knows that Sunil sir is the well-wisher of those students. So I think that is That's one right. thing. And I think one more thing I would like to add is here that when we make a timetable, there should also be a goal, you know, a goal to achieve. What should be my today's goal to achieve when I make my timetable? So when I'll be managing Other it, thing I should know also, that at the end of the day, this is the outcome I should get. So if my timetable says that I should do this lesson and it should be get completed, so that is the goal that I achieved. So there should be also some kind of writing of how much I've achieved in my today's day work. I think that can also help to understand that how much we are working on our timetable. That's one thing, and how much more we need to work. So I think managing. यस यस, yes, मैंने भी and ऐसा ही only टाइम टेबल yes, बनाया था मैम कि only the अगर timetable आपको related Okay. to study is not enough. Only timetable to follow related to study is not enough. I am interrupting here, sorry, but even the other things are equally important. Spirituality also is important. If you don't teach your child the culture and spirituality, then it is all with the studies. It will be useless human being. If you don't know your culture, your आपको बात कब लेना है आपको नहीं पता है, then it is useless. आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बात लेते हो, what is the time that is fixed. If you say no, I will have night bath, then it is useless. You can have See, second. मैम रात को Miss मैम रात को Kanani, नहा के खाने सोना का भी टाइम अच्छा भी होता है। लंच hold होता on, है hold तो on, आप guys, hold कहोगे on. लंच में नहीं करूंगा, शाम को लंच करूंगा. That is not the point. Even dinner, you कविता will मैम, say 3 I o'clock I think will have dinner. So this also is not important. मैम आई वांट टू मैम से टू फूड थिंग। का हर बार ये फोर्सफुली कि लंच को लंच के टाइम पे, डिनर को डिनर के टाइम पे, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देता है टाइम टेबल से। मैम बच्चे फिर का खाने का मन नहीं है तो वो बाद में भी तो खा ही सकता है। मैम उसमें कोई But प्रॉब्लम नहीं that होनी is चाहिए। different matter. No, If no, you are I not think well, interrupt. if you are not well, it is different matter. But lunchtime, I am not saying actually 1 o'clock and you have to eat your lunch. Maybe ओके, the और time बच्चों और सब 1 बच्चों to को ये मैं ये 2:30. कहना चाहता हूँ, सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कहते कि आप हर रोज टाइम टेबल फॉलो करो। हम जैसे सुनील, अगेन आई वुड लाइक टू कोट सुनील, आई लव दिस स्टेटमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी हम देंगे आपको, पर फ्लेक्सिबिलिटी को Yes. फिर आदत नहीं बनानी है। फ्लेक्सिबिलिटी को हम देते हैं तो उसको आदत नहीं बनानी है। रोहित wants to speak. Rohit, in the interest of time, let बोल Rohit लैंडी speak. बोल। Rohit. सर आई वांटेड टू And से टू flexibility थिंग्स। should not be that morning का breakfast आप शाम को करो, ऐसी flexibility नहीं होती है. बात से related, eating habits से related, and you are sitting and getting up and talking to others also related. Everything should be. I am not saying that perfect timetable, strict timetable, but flexibility भी होनी चाहिए. तो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप सुबह की बातें सब रात को कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. You Yeah, and follow not daily. flexibility. ये daily भी You नहीं can होना चाहिए। follow. Yeah, flexibility True. follow करो, मैम लेकिन to पर a हमारा limit. टाइम टेबल There should be मेरे a हिसाब limit. से तो स्टडीज का ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लाइफ में, खुद के लाइफ में और भी बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, तो मैंने एंड तो उसमें सिर्फ इनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आई हाँ यस, मैंने तो मैं फॉरली कि इनको नहीं खुद एक सिर्फ करना एग्जांपल चाहिए। देना Yes, I think we चाहूंगा। should स्टडीज का टाइम Guys, टेबल तो दिया। we बच्चे interfere in the नहाएंगे personal ही life. नहीं. आप कैसे भी पहले ऐसे तो भी हो सकता है बच्चे नहाए, बच्चा नहाएगा ही नहीं,
2 दिन 3 दिन तक नहाएगा नहीं। मैम बिना नहाए भी पढ़ लेगा तो कोई पाप थोड़ी ना कर लेगा मैम, कोई बात नहीं। You get सर यहाँ पे टाइम थिंकिंग की वजह से ना guys, थोड़ा hello everyone, we are mixing timetable and discipline here, okay? What Kalani ma'am is saying, नहाना, खाने के वक्त उठना नहीं, मुंह खोल के ना खाना, हाथ से ऐसे ऐसे ना खाओ, ये सब बेसिक डिसिप्लिन होती है, राइट? सो डिसिप्लिन को हम टाइम टेबल में मिक्स नहीं कर सकते मैम। आपने जो पॉइंट बोले सही है। मैं फ्लेक्सिबिलिटी बोल रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा मुझे आके बोलेगा एक दिन कि डैड मुझे आज ब्रेकफास्ट नहीं करनी, मैं सीधा लंच करूंगा, तो मैं उसको नहीं डांटूंगा। पर अगर मुझे आके रोज बोलता है 2 दिन या 3 दिन में 3 चांस दूंगा। अगर चौथे दिन बोला कि भाई ब्रेकफास्ट कर, तेरे लिए अच्छा है। सो ये भी एक, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू मेक्स अ डिफरेंस, राइट? In the interest of time, I think we just let Rohit speak. Rohit, please बोलिए. Sir, I wanted to say 2 things. Sir, first that of course parents are our well wishers, but their intentions are always good, but actions may not always be. So sometimes उनको पता नहीं होता कि कैसे करना, and they don't know the practical situation sometimes. No, one second. वो अपने टाइम के हिसाब से सोच रहे हैं। रोहित क्या बोल दिया तूने? रोहित, होल्ड ऑन, सुरेश होल्ड ऑन। ये जो आप बोले रोहित, ओके, एक्शन के बारे में आप जो बोले, घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत सुनी है? आप लोग भी मम्मी और पापा को जितनी अच्छी तरह आप अपने दोस्तों से बात करोगे, उतनी अच्छी तरह से आप मम्मी पापा को बात नहीं करोगे। लेट्स बी प्रैक्टिकल। मैं आपके एज से गुजर चुका हूं। मैं मेरी शादी के बाद इंडिपेंडेंट रहता हूं, राइट? After I became parent, I realized कि मैं मेरी मम्मी फोन करती थी, I used to tell my mom तू, but I want my kids to call me तमे. Isn't that hypocrisy? ये गुजराती के शब्द है, तमे मतलब आप। मैं मेरी माँ को आज भी तू बोलता हूँ, पर मैं मेरे बच्चों को ट्रेनिंग दिया हूँ कि आप मुझे तमे बोलो, आप बोलो। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ जो रहते हैं ना, उनके साथ बात करने की स्टाइल अच्छी अलग हो जाती है। हम अपने खास दोस्तों को गालियों से बात करेंगे क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं। जिसे हम अपना मानते हैं उससे ही हम रूडली बात करेंगे, और ये हम दोनों का हक है। सर बट पेरेंट्स के साथ रूडली बात नहीं करनी चाहिए, तो मतलब गाली नहीं देनी चाहिए उनकी। हाँ जी सर, रोहित को सब उसके सरनेम से ही बुलाते हैं, तो ये इनके बीच में चलता रहता है, पर ये ऐसे पेरेंट्स के बीच में नहीं बोल सकते। आपका ही पॉइंट था, इसको सब सर लैंडी बोलते हैं। Okay, but that's fine. See, understand one thing. जैसे रोहित ने बताया कि action matters, right? Action matters. I agree, absolutely I agree. उसमें कोई deny point नहीं है। पर आप घर की एक्शन को बाहर के वालों के साथ एक्शन को मिक्स नहीं कर सकते। You can't mix these two things. सर इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि सर पेरेंट्स कभी सर, मैंने जो टाइम टेबल बना के दिया था उसमें थोड़ा सा सर इसको स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है, और सर इशिका भी सर नेशनल लेवल फुटबॉलर प्लेयर भी है, और तो सर लैंडी को भी बहुत शौक है सर खेलने का। पर सर पेरेंट्स कभी दबाव दे देते हैं ना कि आप अभी इस एज में अभी खेल के क्या करोगे, पढ़ लो थोड़ा पढ़ लो। तो सर ये वो एग्जाम्पल लेके कह रहा है, वैसे ये बच्चा बहुत क्लियर है। वो सर कहावत नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, वो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा सीरियस ले लेते हैं, पर हमने तो उल्टा बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि खेलोगे लिखोगे होगे नवाब ऐसे, पर सब बैलेंस रहना चाहिए। तो इसकी लाइफ में सर थोड़ी पढ़ाई ज्यादा हो गई इसलिए। But parents always think. I think Rohit, you can bring your parents from next time. That will be really nice. We would love to even know their point of view, because as a parent they might be thinking something different, and it is very important, Rohit, right now to for you to understand them, right? Because when I see here Miss Kanani and Preeta, I can see they are understanding each other very well. तो ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे अंडरस्टैंडिंग हम चाहते हैं कि आए, राइट? सो रोहित, आई रिक्वेस्ट यू नेक्स्ट टाइम डू ब्रिंग योर पेरेंट्स, एंड विल बी रियली नाइस दैट इवन सुनील सर विल बी हियर टू explain how good you are, because teachers, parents and students, there is a connection, that there is a bridge that we need to make, right? Yes. भुवन, तुम बड़ी देर से बोलना चाहते हो। भुवन बेटा बोलो, भुवन डिल्लोन बोलो। सर एक्चुअली मैं भूल गया मैं क्या पॉइंट बोलना चाहता था। सो सर मैं बोलूं इतना टाइम में?
Yes, बोल हाँ बोल सुरेश बेटा, बोलो। सुरेश बोल। सर प्रॉब्लम देखो सर, पेरेंट्स में द थिंग इज दैट एवरी पेरेंट्स चाहता है कि वो उसका बच्चा लर्न करे। तेज बोल बेटा, तेज बोल थोड़ा। सर हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा सारी चीजें लर्न करे, बट इतना सर, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ सर, मेरे को एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं था जैसे सुनील सर ने कहा, बट इन द सर मेरे को प्री बोर्ड में आई गॉट 62 आउट ऑफ 80 एंड सुनील सर ने मेरे को कहा कि पिछले साल के पेपर निकाल, प्री बोर्ड का जो जो प्री बोर्ड का पेपर निकाल और सैंपल पेपर निकाल, उसमें से देख चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन आ रखा है। तो जस्ट अगर तूने आगे आर्ट्स नहीं लेनी, हिस्ट्री एसएसटी नहीं करना, तो तू बस वो क्वेश्चंस देख, 5 मार्क्स हैं तो उस चैप्टर से 5 मार्क्स ही करके जा। तो सर मैंने सर की बात मानी एंड आई गॉट 92 व्हिच आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, बट मेरे लिए काफी अच्छे थे वो। So I think great Suresh. So in the interest of time, हम already cross कर चुके हैं, but I would like to just take few minutes to summarize this. Okay, पहली तो बात ये है, मैंने जो आज सुना, okay, सुनील सर से, कानानी मैम से, मैं खुद एक पेरेंट हूँ और मैं ऑफ कोर्स मेरा इंक्लिनेशन सुनील सर और कानानी मैम के पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छा था, पर बीइंग अ मॉडरेटर मैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकता अकेले से, इसलिए मुझे स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करना पड़ा। बट एक चीज, पहली तो बात ये है कि I would always tell my students or my child or my people, और जैसे जैसे एज चेंज होती है वैसे वैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे सुनील सर ने बताया। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमें हर एज पे हमारे सेल्फ को बदल के हम हम बात करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स की हेड चेंज करना। आई थिंक ये पर्टिकुलर वेबिनार में मैं ये बोलना चाहूंगा कि एज अ पेरेंट हमें कभी कभी बच्चों की भी हेड पहन के सोचना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स की हेड चेंज करना जरूरी नहीं है, हमें बच्चों की भी हेड पहननी चाहिए। और थोड़े कभी बच्चे कभी बड़े पेरेंट्स हुए, को बच्चे बन जाना चाहिए उनको करेक्ट समझने सर, के लिए। करेक्ट सर। और हमारे नेक्स्ट वीक का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है सुनील जी, आपको बहुत मजा आएगी, मैं डिस्कस करूंगा। ये सब चीजों में एक शब्द मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, मेंटोर। या तो आप माँ बाप, टीचर्स, गुरु, नेबर्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के मेंटर है, राइट? आप एज अ किड, आपका बच्चा कौन से मेंटर पे सबसे ज्यादा विश्वास करता है, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने इशिका और रोहित से ये भी सुना कि यस वी शुड गिव लिबर्टी टू आवर किड्स। आई एग्री, बट एक बात याद रखना बेटा, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप अपने माँ बाप के लिए आप हमेशा बच्चे रहोगे, तो कभी कभी अपने माँ बाप की भी हेड पहनो और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर आप हमें एक्सपेक्ट करते हो बच्चा बनने को, आप भी कभी कभी माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ? यस भुवन सर मेरे को बस इतना बोलना था कि सर मतलब एज इन की, जैसे आपको नहीं लगता कि अगर ज्यादा सर्विलेंस रखने पे कि बच्चा अपने आप आपसे कुछ छुपाने लग जाए तो वो ज्यादा गलत वे में रहेगा? मतलब अगर आप उसके ऊपर इतना प्रेशराइज करे जा रहे हो कि वो आपसे मतलब एज इन चीजें छुपाने लग जाए, तो बहुत वैलिड पॉइंट है। आई एग्री। आप अगर ज्यादा मॉनिटरिंग रखते हो बच्चों पे, सर पॉइंट एक बार रिपीट कर देंगे, मेरा ऑडियो थोड़ा वो पॉइंट ये था सर कि अगर आप अपने बच्चों पे ज्यादा मॉनिटरिंग करते हो तो बच्चे आपसे छुपाना शुरू कर देंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। It depends on the parents' behavior also. Monitoring is there. With that you are friendly with your child, then your child will never hide anything from you. Like I and Preeta are always friendly, but there is a discipline with that. We are friendly. It doesn't mean that you do whatever you want. It doesn't mean that कल को जाके आप कहीं भी घूमो, कहीं भी कुछ भी करो, पढ़ाई छोड़ दो। Sometimes it is fine कभी that what we are to very do. very friendly, but Preeta follows everything. I don't just put on her everything that you do this thing, but I explain her, if you do this it will be good for you. Yes ma'am, yes ma'am. I think हम बस एक मीटिंग में इसमें this can be a topic for entirely different discussion, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, इस टॉपिक को हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। So I think we should keep this for the next session. हम बस एक बात बोलनी थी, जो कविता मैम ने बोला कि अभी बस दिक्कत ये है कि मोस्टली बच्चे हैं इसमें क्लास में, पेरेंट्स नहीं हैं, तो हम ये नहीं बता सकते, पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि थोड़ा फ्रेंडली रहो। That's a really nice point. That's what I wanted to actually express, that
here we have some really, mature kids, at least kids who are actually getting mature, and they are understanding. They are actually trying to understand parents. But parents को भी ये बात समझाना, इसके लिए we want you people, you students, to bring your parents to our next session, right? And the next session is actually about, centralizing between the parent and the student, right, or the child. So I request you all that definitely do bring your parents, and ऐसा हो तो दोनों अलग मोबाइल से लॉग इन करना, ताकि दोनों को एक टाइम मिले बोलने के लिए, and we'll have a very nice discussion. I think Tushar sir would like to disclose the topic. Yes sir. मैडम ऐसा हो गया, इन बच्चों का मेरे से इतना अच्छा अटैचमेंट हो गया कि ये मुझे ही पेरेंट मानने लग गए. Yeah, you might. I can feel that you are the godfather, and it's really nice that they have you. I think they are blessed. They are blessed. Yeah. So, but I think Radhika said a very right point. We have to get, अगर हो सका तो अपने parents को भी लेके आइए. Again coming back to my topic, Bhuvan, yes, I agree with you. ज़्यादा monitoring कभी कभार झूठ बच्चों को incest करवा देती है. But my point is here that it's not what you do. It's how you do makes a difference. आप क्या करते हो ये फर्क कुछ नहीं करता है, आप कैसे करते हो ये फर्क पड़ता है. And this is what Kayani madam was trying to say. Be friendly, draw a line, be strict, make timetable. Overall, I think timetable is a very, very legacy concept, right? Timetable कोई भी बनाए. At the end of the day, हमें I believe कि timetable बनाने से ज्यादा मुझे वो timetable देते वक्त मेरे बच्चों को ये रियलाइज करवाना है कि रिस्पॉन्सिबल बनो. बी रिस्पॉन्सिबल. वेरी राइट. इफ यू डोंट फॉलो इट्स ओके, बट मेक श्योर एट द एंड ऑफ द डे यू गिव व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू एज अ बेयर मिनिमम किड ऑफ माइंड. यस सर, टाइम टेबल तो सर हजारों बन जाते हैं, उनको फॉलो करना आना चाहिए. सर वो रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाना है हमें. एग्जैक्टली, वो रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाना है. टाइम टेबल की अहमियत क्या है किसी के लाइफ में. चलो हम काम करते हैं. आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स. मेरा टाइम टेबल बोलता हूं मैं. आई वर्क, मैं सर्विस करता हूं, राइट. सर्विस के भाषा में, प्रोफेशनल भाषा में टाइम टेबल को टू डू लिस्ट बोलते हैं. टू डू लिस्ट, बहुत सारे शब्द है दूसरे, पर सिंपल भाषा में, प्रोफेशनल भाषा में टू डू लिस्ट बोलते हैं. वो टू डू लिस्ट कौन बनाता है? मैं अपना खुद बनाता हूं, मगर मुझे बोलता कौन है बनाने को? मेरा बॉस, मेरे पियर्स, मेरे कलीग्स, मेरे टीम मेंबर्स. अगर आप हाई पोजीशन पे हो तो आपके 1 डाउन्स, 2 डाउन्स, क्रॉस फंक्शन, ये सब मुझे चीजें बोलते हैं. उसका मैं टू डू लिस्ट बनाता हूं. इवन कंपटीशन, यस. सो बच्चों, एक स्टेटमेंट मैं बोलना चाहूंगा. will say yourself. जब आप मतलब just one thing I'm trying to say here is that this particular thing, this word timetable आपकी जिंदगी कभी नहीं छोड़ेगा. अभी आपके पेरेंट्स आप पे दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, हम अभी से जब आप में ये इनकलकेट करना शुरू करेंगे, आप जब काम करोगे, अभी तो मैं डायरी पे बनाता हूँ, आपके प्रॉब्लली आप जब काम करना शुरू करोगे डिजिटल आ जाएगा पूरा. व्हाट्सएप पे टाइम टेबल आते हैं यार, व्हाट्सएप पे काम आते हैं, वो क्या है, और टाइम के साथ आते हैं कि मुझे ये आज करना है, ये कल पे मूव करना है. ये सब चीजें जो है ना, जो हम घर पे कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल लाइफ, अगर आप बिजनेसमैन भी बने तो भी ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी. सो हम बचपन से जो, आई थिंक आई लव दिस स्टेटमेंट, कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसका टाइम टेबल शुरू हो जाता है. जब तक वो मरता है तब तक उसका टाइम टेबल रहेगा, क्योंकि मरते वक्त वो दवाई का टाइम लेगा, खाने का टाइम लेगा. जैसे जैसे उम्र होगी आप अपना डाइट कंट्रोल करना शुरू करोगे. तो ये सब चीजें होती रहेगी. बट आई वुड रिक्वेस्ट, भी आया भी नहीं है इस दुनिया में और आप उसका टाइम टेबल बना रहे हो, उसको सांस तो लेने दीजिए. वॉकिंग स्टेप्स बढ़ जाते हैं ओल्ड एज. नहीं सर, सही बात है, बहुत सही बात है. सुनील सर, आर यू मैरिड? Yes sir. And you have a baby also? Yes sir, I have 4 babies. So please ask your mother and your wife, by the time they were born, time table बन गया होगा कि सुबह दोपहर को निलाना है, वो हमें वो तावीज, वो सूट की तावीज बांधनी है. तो ये सब चीजें. जी सर सुनील 4 बच्चे सर हमें बोल रहे हैं.
Okay. नहीं बेटा, ये बहुत ऐसा नहीं है. It's not like that. I'm just trying to summarize. और मैं आपको सुनील सर, आप important समझाना क्लैरिफाई कर चाहता हूँ. दीजिए ना मैं कि खुद एक बार सुनील सर आप क्लैरिफाई कर दीजिए, आप हमें बच्चा बोल रहे हैं ना. हाँ जी बेटा, हाँ जी. हैप्पी बर्थडे सर. अच्छा, सुनील सर के हैप्पी बच्चे खुद के बर्थडे बच्चे सर. नहीं है. Happy birthday, sir. हैप्पी बर्थडे सर. सर सुनील सर. Wow, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Thank you बेटा. बर्थडे A very happy birthday, Sunil sir. And please Thank you, get more Tushar kids sir. Thank you. next सर मैं session अपने में. बच्चे के और लिए आऊंगा. हाँ, okay, अपने बच्चे लेके आइए. Yes sir. But again, so सर मीटिंग भर जाएगी just पूरी सर. no problem, sir. हमें बहुत मजा आ रही है. Actually मैं बोलूं बात सही में, मुझे ये बच्चों से सीखने को मिल रहा है कि मैं मेरे बच्चों को हैंडल कैसे करूं, क्योंकि इतने सारे बच्चों की साइकोलॉजी में आज समझ पा रहा हूँ. राइट, अलग अलग साइकोलॉजी है. मेरे भी दो बच्चे, खुद के दो बच्चे हैं. So I also get to learn by understanding these people. और मेरे बच्चे अभी टीन में, मेरा एक बड़ा बच्चा तो टीन में पहुंचने वाला है. 10th के बाद वो 11th में पहुंचने वाला है. तो मुझे बहुत सीखने मिलता है. तो प्लीज गेट किड्स, प्लीज गेट पेरेंट्स. बच्चों प्लीज अपने पेरेंट्स को लेके आओ. So with Yes, I this, think I'm even going to Tushar disclose the sir will next. bring their, even Tushar sir will, invite his own son in our next Yeah, webinar. why not? Why not? Because Yeah. next My webinar daughter is is roaming सर here super with उसका the बहुत exciting. क्रूशियल ईयर है सर, उसे पढ़ने दो प्लीज अभी तो. नहीं, पर आधा घंटा आएगा वो. लेट हिम कम. मेरी बच्ची यहीं पे घूम रही है, 3rd स्टैंडर्ड में है, बट बहुत बोलती है. वो यहीं घूम रही है. बट आई वोंट सर गेट हर. 3rd तो मे बी अलग क्लास हो गई सर, 10th तो फिर बोर्ड ईयर हो गया थोड़ा तो. No, भुवन but बेटा next, क्या बोल I रहा है? think तू it's भी तो good. आया हुआ है ना 10th से. Yes, Preeta, you want to say something since long? Yeah. Sorry, sir, I'm interrupting. No, go ahead, Preeta. Tell me. Yeah, I wanted to just, sum up, like you said, I had this idea in mind, so I wanted to. So first of Sure. all, जब टाइम टेबल बोलते ही है ना, तभी एक कोई टाइप का टाइम टेबल होता ही नहीं है. पहले तो सबके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसका कैसे टाइम टेबल होगा. ठीक है. सो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले कि सबके टाइम टेबल कैसे बन रहे हैं. कुछ इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, कुछ डिपेंडेंटली बना रहे हैं. सो दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडेज webinar, I can say. Okay, Yes. thank you, Preeta. So let me disclose the next week's topic. So next week का topic बहुत interesting है. The topic is that can a parent be a friend to the child? माँ बाप Surely. अपने बच्चों के फ्रेंड्स बन सकते हैं. हाँ या Friends ना होते हैं हमें नहीं सर. सुनना है. हाँ सर. पेरेंट्स सुनिए बच्चों सर. के फ्रेंड्स होते ही हैं सर. I don't agree. I absolutely Do don't you- agree. इस पे हम सर debate कर लाइव सकते हैं. एग्जांपल बैठे हैं सर. If anyone will propose, you will Literally live. लाइव हम एग्जांपल नेक्स्ट बैठे हैं वीक सर, डिस्कस कविता मैम करेंगे. और ओके, हम We'll नेक्स्ट वीक discuss डिबेट this करेंगे. If अच्छा हुआ anybody will आपने. propose you, will you share with your parent? If you carry your parent as a friend, will you share? Maybe not literally parents, Ma'am, I but do. Bhuvan, but Sunil sir मैम के साथ आपको अगले definitely. हफ्ते बताएंगे. तो- हम अगले हफ्ते तैयार मैम, होके आएंगे. सुनील सर हम को आपको बताएंगे. अगले हफ्ते. अगले अब हफ्ते सुनील सर करेंगे. को बता देंगे सब कुछ. I think मैडम आप अगले हफ्ते Then आइएगा. I think मीटिंग में अब Okay, I बोल नहीं सुनील think सर we पाएंगे. हमारे should carry on कोटा this. फैक्ट्री पे ओके, जीत रही है. एवरीवन मुझे भूख लगी है. प्लीज मुझे खाना खाना है. हमारा Here- टाइम अप हो गया है. yes, So, but and sorry I to think interfere. we But I'm do sure. have the, we I'm do sure have you the like the topic. I'm sure you love the topic. So ये टॉपिक में रोहित, इशिका, कपिल, भुवन, सुयश, प्लीज हो सका तो अपने पेरेंट्स को लेके आइए, बिकॉज ये बार मुझे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ सामने व्यू ज्यादा बैठे हैं सुनने हैं. सर. अच्छा भुवन, ओके, सो ये सुनील बार सर हमें बैठे पेरेंट्स हैं. के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सुनने हैं, एंड आई विल वांट पेरेंट्स टू स्पीक दिस टाइम. But I think right now we need to sum up. I think this was a great discussion. I think हमारे 20 minutes on tops हो गए, but they were worth it. काफी अच्छा डिस्कशन रहा है. सो नेक्स्ट सेशन में आई थिंक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी चालू हो चुका है. तो वी विल टेक दिस इन अ नेक्स्ट सेशन. बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सैटरडे ईगरली, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स को भी लाने वाले हैं, सो दे आर इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग. हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, पेरेंट पर्सपेक्टिव साथ में एक प्लेटफॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी a very good experience for everyone. सर Okay, अगली all बार right, की thank you सैटरडे everyone. 8:30.
Yes, every Saturday 8:30. Every Saturday 8:30. Thank you very हम तो much, पूरे Sunil sir. हफ्ते Appreciate. एकदम इंतजार में ही बैठ के रहते हैं आपसे मिलने की. Thank you, sir. Thank you, everyone. Kids, And take care, it stay is- safe, stay healthy. Thank you so much. Thank you, Thank sir. you so Everyone, much. bye. Thank you so Thank much. you. Bye. Have a good night. Good Thank night. you, sir. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, Sunil.